minutes ago that the High Court of Calcutta is tying the hands of the police, and therefore the arrest of Shahjahan Sheikh is not being possible to be made by the state police. That type of excuses will not work hereafter. Nobody prevented the arrest of the gentleman, and if without the support of the ruling party, this type of commission of crimes and the roaming free by the criminals will not take place. How is it related to our going to Sandesh Kalpi? You say that? नहीं वो How is it related to अरे how the two शाहजहां के बारे में बोल I रहे know, हैं. but that he may have commented. But And High Court has said, No, High Court has in no, fact actually- indicted the government. Actually, But you I want Shahjahan just want to be to the arrested. reactions Definitely, from but No. our going there is not Really? going to stop his arrest. Don't enter. Our going there is to meet the victims, to motivate them and to open up. All right, They all may right. actually reveal. We'll maybe leave it they're at that. under We'll leave it. fire. मैडम चीफ मिनिस्टर ने बोला कि एक एक for that reason she asked this मैडम डोंट एंटर इनटू डायलॉग. मैडम चीफ मिनिस्टर ने बोला कोई कंप्लेंट नहीं आई है. जब कोई महिला कंप्लेंट लेकर सामने आई और जब उसका 164 का बयान हुआ, उसको मीडिया के आगे डिस्क्लोज वेस्ट बंगाल पुलिस का आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें उसका वीडियो भी डाला गया, उसका नाम भी दिया गया है. अनफॉर्चुनेट एंड तो इट ये इज टोटली क्या है? इलीगल. Illegal. ये against कौन सा कानून है? guidelines. आप रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, आप उसकी वीडियो डिस्क्लोज कर रहे हैं. और हमने क्या करना है? हमने तो उनसे जाके मिलना है, हमने सिर्फ उनकी व्यथा का सुनना है. हमें सबसे ज़्यादा चिंता उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की है इस Yes. समय, सबसे ज़्यादा चिंता. And at this rate, they will even intimidate the victims, and they will ensure that the crimes are committed, and at the same time the victims cannot complain to anyone. Entry, Bangladeshi can, but not citizens like us into this country. We could have crossed the national borders to many, even Wagah border could have also been, they would have permitted us to cross the border if the identity is known. But here, identity and everything, nothing short of whether you belong to a particular affiliation or not. If it is there, you can go and do anything. If you are not, come what may, whatever you are, get lost. That's all. May I say something? Where- I just want, and we were subjected to, especially the two women, to severe psychological torture. When civilized persons, 5 members of the committee, are going peacefully and calmly in a car, every car is going on the road, we are also going, the police forcefully puts a barrier and stops us. Nobody else is stopped, we are stopped. And we are compelled to come on the road and walk on the streets. And then there's a pushing and pulling and a scuffle, and they're forcibly trying to put 2 women who have done nothing wrong. The only thing is they want to go and meet the victims and motivate them to come out with the truth and bring the facts on record. And what do? That Kaidi van, where criminals are transported, they have tried to forcefully push us into that. And then after that, they have put us in that van and arrested Yeah. us. And on what grounds? Breach of peace. The road, it's a highway. Where is the question of breach of peace? On the highway, cars are going, our car is also going, and they stop us. Who is breaching the peace? The police, not us. And it's very unfortunate that this committee of advocates and senior judge and senior police persons has been stopped in this manner to hide the truth that something the state government is hiding. Because जिस तरह से उन्हें व्यवहार किया हम दोनों के संग और फिर थाने में ले गए, I was almost going to collapse. And the doctor assistant came, my blood pressure was 98/150. ये मेरी हालत हो गई थी. Right. And if something had happened to me in custody, fearing that, they finally released us. नंदीग्राम, सिंगूर और उस समय जो हिंसक घटनाएं हो रही थी, तो एक नैरेटिव दिया गया है कि इन सब से मुक्ति मिलेगी और एक नया सिस्टम जो है वो आया. अब नया सिस्टम किस तरीके से आया, क्या हालात हैं, ये आप लोग देख रहे हैं. मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और जिसे कहते हैं ना कि मन बहुत पीड़ा से भरा हुआ है. ह्यूमन राइट्स का वायलेशन आज जिस तरह खुले आम हुआ है, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ की अथॉरिटीज़ को कि वो इस चीज़ को नकारें. ह्यूमन राइट्स का खुलेआम इन्होंने वायलेशन किया है. इल्लीगल इन्होंने
अरेस्ट हमारी की है इन वायलेशन ऑफ लॉ, जिसको ये कभी प्रूव नहीं कर सकते कि इनका ये लॉफुल एक्शन था। सुप्रीम कोर्ट्स के जितने जजमेंट्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। इस देश का जो न्याय जो है, रूल ऑफ लॉ है यहाँ का, उसकी धज्जियाँ इन्होंने जो है वो आज इन्होंने खुले आम उड़ाई हैं। उन्होंने वीमेन एंड चिल्ड्रन आर दी वर्स्ट सफरर्स, ये आप पूरे सिनेरियो के अंदर यदि आप देखेंगे, रामनवमी पे भी हमारे साथ में इसी तरीके का इन्होंने बर्ताव किया था। और आज जो है जिस तरह का विभत्स इन्होंने जो व्यवहार किया है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 27 साल में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में रहा हूँ, लाखों केसेज मैंने डील किए हैं, और आज की जो घटना है वास्तव में ये कम्प्लीटली अनहर्ड जिसे कह सकते हैं हम, और नेवर सीन इस तरीके का। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं आई कैन डिस्क्राइब द थिंग्स विच वी हैव एक्सपीरियंस टुडे। क्रिमिनल्स में कोई फियर नहीं है। होटल में हमको डराने के लिए तो आ गए, वहाँ पे जो डीसीपी थे दे वर थ्रेटनिंग अस, दे वर इंटीमिडेटिंग अस। और एक तो ऐसे थे जैसे उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनियों की, पता नहीं वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के रूप के अंदर काम कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वास्तव में। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज कोलैप्स्ड, देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन। और संदेश खाली के जो विक्टिम्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा, हम फिर आएंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम फिर अरेस्ट होंगे, हमें चिंता नहीं इस बात की। अलग पार्टियों से लोग जा सकते हैं, एनसीडब्ल्यू से जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हमें जाने पर ही ऐसा रोक क्यों लगाई गई है? क्योंकि हम एडवोकेट हैं और हम जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और हम जो सच है वो सामने लाएंगे। मेरा हाथ इतनी बुरी तरह से आप सब लोगों ने देखा होगा ड्रैग करके ये मुझे नीली गाड़ी में, अब बताइए मेरा क्या कसूर था? मुझे वो क्रिमिनल वाली नीली गाड़ी में उन्होंने धक्का मार के, वहाँ पर जब मैंने वहाँ थोड़ा सा बोला कि आप मुझे किस सेक्शन में, किस कानून के तहत आप मुझे ले जा रहे हैं, मैंने क्या वायलेशन किया है, तो उन्होंने नीचे उतारा और हम दोनों आकर साइड पर दोनों आराम से बैठे हुए थे, तो वो अरेस्ट वारंट लेकर आ गए। मतलब क्या रीज़न क्या था? हमने सिर्फ उन महिलाओं से जाकर मिलना है और उनके, मैं चाइल्ड राइट के बारे में हमेशा बात करती हूँ, आखिर उन महिलाओं के बच्चों पर क्या बीत रही, उन महिलाओं पर क्या बीत रही है। हम हमेशा उनसे कंप्लेंट लेकर, जहाँ जो प्रॉपर सोसाइटीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आयोग है, हम उन कंप्लेंट को, एक एक पर्सन की कंप्लेंट को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और इनके पास एक ये रीज़न है कि अभी तक उन महिलाओं की कोई कंप्लेंट आई नहीं है, जबकि हमने NHRC में भी कंप्लेंट दी है।